Section 13 Information to the police and their powers to investigate. सेक्शन 173 से 196, 173 से 196 तक है. Information to the police and their power to investigate. First information report. First information report as such ऐसा कुछ written नहीं है. Which chapter of the BNSS deals with the information to the police and their powers to investigate? Chapter 13. ये पहले CRPC में chapter 12 था. Chapter 12 of the CRPC. Information regarding occurrence of cognizable offence is recorded by an officer in charge of a police station under which provision of the BNSS? Section 173. 173 में कोई भी cognizable offence होता है तो officer in charge of the police station जो है वो record करेगा. FIR can be filed under which section of the BNSS? 173. FIR can be filed under section 173 of the BNSS, under which one of the following provisions of the BNSS statutory definition of FIR is given. Not defined. FIR का जो definition है ये defined नहीं है इस book में. The information relating to cognizable offence can be given where the offence is committed, irrespective of area where the offence is committed. कहीं भी अगर cognizable offence हो रहा है तो उसका information कहीं भी दे सकते हैं. अगर जिसके एरिया के अंडर में हो रहा है तो वहां अगर हम देते हैं तो वो रजिस्टर हो जाएगा FIR. अगर दूसरे एरिया में दे रहे हैं तो वहां पे 0 FIR करके रजिस्टर होगा और दैट केस विल बी ट्रांसफर टू दैट एरिया पुलिस स्टेशन. If the information as to cognizable offence is given to the officer in charge of a police station outside the area where the offence is committed, it is called 0 FIR. अगर कोई भी अपराध जो होता है कि एरिया से बाहर होता है, एरिया में होता है और उस क्षेत्र के बाहर में अगर हम कंप्लेन करते हैं तो वही 0 FIR वो दर्ज कर लेगा और बाद में उस जिस पुलिस स्टेशन में वो एरिया रिलेटेड होगा वहां पे वो केस ट्रांसफर हो जाएगा. Under which section of the BNSS the concept of 0 FIR and EFIR? 0 FIR and EFIR can be found. Section 173. 0 FIR और EFIR नया जुड़ा है EFIR. Information as commission of cognizable offence can be given in which of the following manner? Information as to commission of cognizable offence can be given in which of the following? इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, राइटिंग में दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में. आप क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ईमेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे, कुछ भी लिख के भेज सकते हैं और 3 दिन के अंदर में थाना पर जाके हम कुछ FIR पे साइन करना होगा तब जाके वो वैलिड FIR हो जाएगा. FIR suggests that it is earliest and first information of cognizable offence recorded by an officer in charge of the पुलिस स्टेशन. FIR जो है ये अर्लीस्ट है और ये पहला इंफॉर्मेशन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दिया गया है. पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? इट मस्ट हैव गिवन इन राइटिंग. जरूरी नहीं है, ओरली भी दे सकते हैं, राइटिंग में भी दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं. What is true in relation to a first information report? All the above. It is given to officer in charge of the police station. It is signed by the person giving. It may be oral, writing or in electronic communication. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दिया जाएगा, जो पर्सन देगा उसका साइन होगा और ओरल और राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक तीनों में दिया जा सकता है. A first information report means a complaint information relating to the commission of a cognizable offence given to an officer in charge of the police station. क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला मतलब 173 के अंदर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बोथ टू सेट criminal law in motion and to obtain information about the alleged criminal activity so as to able to take suitable steps to trace and bring to book the guilty. criminal law in motion को सेट करना और इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में जो है
कौन किया है उसको सुटेबल स्टेप्स लेना, इसके लिए एफआईआर कराना पड़ता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases an officer in charge of police station may with prior permission of an officer not below the rank of deputy superintendent of police after considering the nature of the gravity of the offence proceed to conduct preliminary inquiry। इस केसेस में ऑफिसर इंचार्ज जो है वो डीएसपी से परमिशन लेगा टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस, मतलब 3 से 7 साल, 3 to 7 years में जो अगर कोई भी ऑफेंस होगा जिसका पनिशमेंट जो होगा वो 3 से 7 साल होगा, तो वो पहले परमिशन लेगा, तब जाके वो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस और परमिशन लेगा नॉट बिलो द रैंक, मतलब कि डीएसपी के कम, डीएसपी से नीचे कोई भी ऑफिसर नहीं होगा जिससे वो परमिशन लेगा, तब जाके वो इंक्वायरी नॉट बिलो द आफ्टर कंसिडरिंग नेचर ऑफ कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए परमिशन लेगा। If the FIR is given through electronic communication, then it must be signed by person giving it in 3 days। 3 दिन के अंदर उसको साइन करना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉनिकली दिया गया है तो। अंडर सेक्शन 173 का 3, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस में प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड इन दैट section to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding or not। अंडर सेक्शन 173 17 क्वेश्चन है। अंडर सेक्शन 173 का 3, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन दैट सेक्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का समय रहेगा 14 डेज। और किसके परमिशन लेगा? कम से कम डीवाईएसपी, डीएसपी रैंक से परमिशन लेगा। और कब कौन कितना का सजा है? 3 से 7 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। In reference of information relating to commission of cognizable offense, 18 question, which of the following statement is correct? Information relating to cognizable offense, copy of information cannot be given free of cost to the informant, ये फ्री दिया जाएगा। Which one of the following statement is not correct? फ्री में दिया जाएगा। एक कॉपी जो है आपका, वो एफआईआर का कॉपी फ्री में इंफॉर्मेंट को दिया जाएगा। Under section 173 of the BNSS, who can give information relating to commission of cognizable offense? कौन दे सकता है अगर कहीं cognizable offense हो रहा है? cognizable offense अगर हो रहा है, कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है। Any person may give information to the police about the cognizable offense। Which of the following is not essential element of first information report? कौन सा जो है essential element नहीं है? FIR का essential element नहीं है। इंफॉर्मेशन में रिलेट टू एनी ऑफेंस वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। तो वो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के ऑफेंस का हम एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन इफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल द होल केस शैल बी डीम्ड टू बी इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इफ एन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल द होल केस। अगर 10 ऑफेंस लगा, 10 सेक्शंस लगे, तो उसमें अगर एक कॉग्निजेबल है और बाकी नॉन कॉग्निजेबल है तो पूरे केस को कॉग्निजेबल माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी साइड बाय द पर्सन गिविंग इट। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो जो होगा वो साइड बाय द पर्सन गिविंग इट होगा। रीड द फॉलोइंग। एफआईआर इज ओनली ए report about the commission of a crime। FIR in itself is a substantial piece of evidence। ये substantial piece of evidence नहीं है। FIR is only a report about commission of a crime। ये सिर्फ crime के लिए एक information। Question number 24। In relation to FIR laws under section 173 of the BNSS, which of the following statement is not correct? FIR, which of the following is not correct? It is not a substantial evidence, ठीक है। C
डी होगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पस। मतलब ये प्रीवियस स्टेटमेंट किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस, इट कैन बी यूज्ड इन ट्रायल फॉर द फॉलोइंग ओनली टू कोरोबोरेट और कंट्राडिक्ट, दोनों करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। टू कोरोबोरेट एंड टू कॉन्ट्राडिक्ट एफआईआर कैन बी यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अंडर बीएनएसएस हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। हु शैल रिकॉर्ड, कौन रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन? अगर कोई रेप विक्टिम लड़की है जो रेप विक्टिम है, तो वो अगर इंफॉर्मेशन देगी तो कौन रिकॉर्ड करेगा? तो वुमेन जो पुलिस ऑफिसर जो होगी वो वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर, कोई भी वुमेन ऑफिसर होगी उसके साथ वही रिकॉर्ड करेगी। If an offense under section 64 of the BNSS is committed, the information shall be recorded by a woman police officer। वही है एक 173 बीएनएसएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा रेप विक्टिम का 173 में होगा, वो वुमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा लिया जाएगा। 28 में है, क्वेश्चन नंबर 28, इफ एनी वुमन अगेंस्ट whom an offense under section 124 BNSS is alleged to has been committed gives information under section BNSS, information should be recorded by वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। 124 बीएनएस में अगर कोई क्राइम होता है तो वो जो होगा वुमेन ऑफिसर जो होगी वो रिकॉर्ड करेगी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 29, एनी पर्सन aggrieved by refusal on part of an officer in charge of police station to record the information in cognizable offense may under section 173(4) of the BNSS send the information in writing and by post to सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर कोई एग्रीव्ड है और वो थाना में अगर दे रहा है और उसका एफआईआर वहां पर दर्ज नहीं होगा, तो वो बाय पोस्ट जो है वो एसपी को भेज सकता है, बाय पोस्ट एसपी को भेज सकता है। किस सेक्शन के तहत? 173(4) के तहत। Under section 173(4), superintendent of police does not act on the information given by the informant. The informant may make an application before magistrate। अगर 173(4) में एसपी को अगर पोस्ट कर दिए और वो कार्य नहीं किया तो मजिस्ट्रेट के पास हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कंप्लेंट का। ए कंप्लेंट बिकम्स एफआईआर, कंप्लेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 31, कंप्लेंट कब एफआईआर हो जाता है? व्हेन इट इज सेंट फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जब ये पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 175 का 3 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भेजा जाएगा तो जो होगा कंप्लेंट जो है एफआईआर हो गया। Under which provision it is, question number 32, under which provision it is provided that where a case relates to two or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be cognizable। डी 170 का 174 का 4 में कॉग्निजेबल है केसेस और नॉन कॉग्निजेबल है केसेस, तो पूरे केस को कॉग्निजेबल ट्रीट किया जाएगा। 174 का 4 ये हो गया नॉन कॉग्निजेबल, ये हो गया कॉग्निजेबल। अगर एक भी कॉग्निजेबल केस है तो पूरे केस को कॉग्निजेबल ट्रीट किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द कंसर्न मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगा? जब मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर करेगा तब स्टार्ट होगा इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is false in the context of 174 of the BNSS regarding investigation of non-cognizable cases? कौन सा फॉल्स है? तो एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द पावर ऑफ अरेस्ट। पावर ऑफ अरेस्ट नहीं रहता है विदाउट वारंट, विदाउट वारंट तो कतई नहीं। ऑफिसर पुलिस में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल, पावर ऑफ अरेस्ट नहीं रहता है। जब उसको ऑर्डर मिलेगा तो वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, बट वो अरेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको अरेस्ट वारंट नहीं मिलता। तीसरा, परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय
मैजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई द केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। कोई भी मैजिस्ट्रेट हो जिसके पास या तो कमिट या ट्राई करने का पावर हो, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको दे सकता है, पावर टू इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल केस। Question number 4, which of the following cannot be arrested by a police officer without warrant? Person accused of non cognizable offense। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले पर्सन को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए, तभी जाके अरेस्ट कर पाएंगे। A case, question number 5, a case which includes cognizable offense and non cognizable offense is a केस जो है वो कॉग्निजेबल भी है और नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉग्निजेबल केस कहेंगे। नॉन कॉग्निजेबल खत्म हो जाएगा। Cognizable case but requires sanction of the magistrate for investigation into the non-cognizable part। Cognizable case and as such the investigation of the case does not require any sanction of the magistrate। मैजिस्ट्रेट अगर वो एक भी कॉग्निजेबल हो गया तो मैजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं चाहिए फिर। When an information is as to commission of non-cognizable offense is given to the officer in charge of the police station, he shall enter the substance of information in a book and refer the informant to the magistrate, forward the daily diary report both and A and B। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का उसको रिपोर्ट मिलता है तो क्या करेगा? इन्फॉर्मेंट को बोल देगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, और दूसरा बोल देगा, और दूसरा क्या करेगा? डेली डायरी रिपोर्ट जो है वो हर 14 दिन पर, फोर्टनाइटली मतलब हर 14 दिन पर मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट भेज देगा। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलेंगे जिसको। When an information as to commission of non-cognizable offence is given to an officer in charge of police station, he shall enter the substance of information in a book and forward the daily diary report of such cases to the magistrate on fortnightly basis। हर 14 दिन पर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड कर देगा टू द मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन अंडर। कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने का पावर कहाँ दिया गया? 175 में। Question number 2, under section 175(1), considering the nature and gravity of the offence, the superintendent of police may require dash to investigate the case, deputy superintendent of the police to investigate the case। 175(1) में ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के हिसाब से वो डीएसपी को बोल सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए केस के। मैजिस्ट्रेट empowered अंडर सेक्शन 210 of the BNSS may order an investigation by police in a cognizable offence on an application made under section 173(4). This is provided under which section of the following section of the BNSS? 175 का 3। The magistrate has the power to direct the police to investigate into an offence in BNSS under section 175 का 3। पुलिस को वो डायरेक्ट कब करेगा? 170। मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पुलिस को डायरेक्ट करे अंडर 175 का 3। Under section 175(3), the magistrate may order investigation after considering all the above applications supported by affidavit, after inquiry if he thinks fit, as he thinks, after hearing submission made by police officer। In case of complaint against a public servant arising in course of discharge of official duty, any magistrate empowered under section 210 may order investigation subject to both A and B, receiving a report from officer superior to such public servant after consideration of the assertion made by the public servant। अगर उसका सीनियर रिपोर्ट दे दे या उसका जो पब्लिक सर्वेंट है उसका एक assertion आ जाए कि हाँ उसका स्टेटमेंट आ जाए। Which of the following case can be investigated by officer in charge of a police station without the order of a magistrate? Without the order of the magistrate cognizable केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। Who out of the following may investigate a cognizable case even without the order of the magistrate? Deputy Superintendent of Police। एक cognizable केस को even without the order of the magistrate, cognizable केस को
इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डीएसपी। द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175(3) of the BNSS can be exercised by both magistrate and session judge. डायरेक्ट पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो 175 का 3 में जो पावर है वो बोथ कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जज और मैजिस्ट्रेट दोनों कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Magistrate can order investigation under section 175 का 3 BNSS even if the offence is exclusively trial by session court. हाँ, अगर मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट जो है वो 175 का 3 में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को बोल सकता है अगर वो केस जो है ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी हो तब भी। Which of the following statement is incorrect in relation to power of magistrate under section 175 का 3? He may direct the officer in charge of a police station to conduct investigation into an offence only after recording the reasons for doing so. He may direct officer in charge of a police station to conduct the investigation. वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि इन्वेस्टिगेट करे आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस फॉर डूइंग, और वो रीजन नोट डाउन कर देगा कि हाँ क्यों करना है और किस पॉइंट पे करना है। A magistrate has the power to direct the police to investigate in respect of an offence under IPC, under any special or किस पे कर सकता है, तो कोई भी जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी हो गया या फिर लोकल और स्पेशल लॉ, कोई सा भी लॉ है जो वायलेट हुआ होगा उसके तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 176 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, under which section or under which provision of BNS on receipt of one first information report for commission of an offence, the officer in charge of the police station will send the copy of concern to magistrate. D 176। अगर कोई भी पहले क्या होगा, कोई भी ऑफेंस होगा तो उसका हम इंफॉर्मेशन देंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है जो पुलिस स्टेशन में, उसको हम एफआईआर किए और वो फिर इन्फॉर्म किसको करेगा, मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट से वो परमिशन लेगा कि हम क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करने हम स्पॉट पर जा रहे हैं, और उसका एक कॉपी मैजिस्ट्रेट को सेंड कर देगा। कंसीडर द फॉलोइंग statement in relation to the recording of the statement of victim of an offense of rape recording according proviso 2 of the section 176 of the BNSS. Which of the following statement are correct? All the statements are correct. Such statements shall as far as practicable be recorded by a women police officer, सही है। Such statements shall be recorded in presence of parents, guardian, near relative और social worker of the locality, ये भी सही है। मतलब जो विक्टिम ऑफ रेप होगा उसके लिए बोला जा रहा है। Such statements shall be recorded at the residence of the victim or in place of her choice, ये भी सही है। रेसिडेंस पे हो या उसका प्लेस ऑफ हर चॉइस हो। Such statement may also be recorded through any audio, video, electronic means including मोबाइल फोन, ये भी सही है। मोबाइल फोन से भी रिकॉर्ड करके मंगा सकते हैं, प्लेस ऑफ हर चॉइस वहां रिकॉर्ड कर सकते हैं, या विक्टिम के घर पे कर सकते हैं, पेरेंट, गार्जियन और नियर रिलेटिव हो उसके प्रेजेंस में कर सकते हैं। Which provision of BNSS provides that on receipt of any information relating to commission of an offence which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of the police station shall from such date as may be notified by the state government cause the forensic expert to visit the crime scene to collect the forensic evidence in the offence and also cause videography of process on mobile phone or any other electronic device. सेक्शन 176 के 3 में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को रखना है अगर 7 इयर्स का पनिशेबल ऑफेंस हो, तो उसमें हमको 176(3) के तहत एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रखना होगा और साइट विजिट करके फॉरेंसिक एविडेंस जमा करेगा और उसका एक वीडियोग्राफी भी बनाना पड़ेगा फॉर मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
The officer in charge of a police station shall, on receipt of information relating to commission of an offence punishable with dash, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence. 7 years or more, 7 years और मोर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा. फॉरेंसिक एक्सपर्ट. A magistrate under section 178 can direct the police to hold investigation. मैजिस्ट्रेट जो है वो होल्ड करने के लिए बोल सकता है. 178 में होल्ड द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए बोल सकता है. अंडर सेक्शन 170 of the BNSS, the magistrate has the power to see either A or B, depute any magistrate subordinate to whom to hold preliminary inquiry, direct investigation. तीनों बोल सकता है. किसी मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने के लिए बोल सकता है, या किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट या खुद जाके वो इंक्वायरी कर सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है पुलिस को अंडर सेक्शन 178.